جی بالکل، ایک طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمر کی جانب سے بہتر کارکردگی کے لیے پولیس کی بہتری کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے، جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور مختلف اضلاع میں اور پولیس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے دورے کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف دیکھنے میں آیا کہ ہمارے صوبائی دارالحکومت لاہور کے دیگر علاقوں میں تفتیشی نظام میں اتنی کرپشن اور بد انتظامی ہے کہ جو پروان چڑھ چکی ہے۔ سائلین متاثرہ کی اشکبار آنکھیں انصاف کی متلاشی نظر آتی ہیں۔ یہ وقوع ہے بدر کالونی کا، جو کہ علاقہ تھانہ شمالی چھونی کے علاقہ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ 30 اور 31 اگست کی درمیانی شب کو نوجوان کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ 36-37 سالہ نوجوان شمس کو قتل کر دیا گیا، جو کہ ایک 9 سالہ بیٹے کا باپ تھا۔ دیدہ دنستہ ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی، اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے ملزمان کو ترس نہیں۔ ملزمان کی جانب سے وائلیشن کے باوجود ملزمان کے خلاف پولیس کی جانب سے جو کارروائی کی گئی، اس میں پولیس نے دیدہ دنستہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس میں تفتیشی مقدمہ شمالی چھونی تھانہ کے انسپکٹر رانا ارحم کی جانب سے مقدمہ کے اندراج پر جو تفتیش کی گئی، اس میں دیدہ دنستہ محرکات میں وائلیشن کی گئی، جس میں ملزم شہزاد مجید، شہزاد انور، محمد علی نوید اور رابعہ بی بی شامل تھے، جو کہ ملزمان کی گرفتاری کے بعد شہزاد مجید کے علاوہ 4 ملزمان شہزاد محمد علی نوید، رابعہ کو چھوڑ دیا گیا۔ رانا ارحم کی جانب سے یہ وائلیشن کی گئی۔ مدعی مقدمہ شیر علی کی جانب سے مبینہ الزام عائد کیا گیا کہ میرے باپ کو میرے بھائی کو قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ذبح کیا گیا، اور تفتیشی مقدمہ نے محرکات کو چینج کر دیا، محرکات کو اتنا تبدیل کر دیا کہ محرکات ہی اب انصاف کی عدم دستیابی پر ڈی آئی جی دفتر میں پہنچ کر انہوں نے تبدیلی بورڈ میں گئے، اور تبدیلی بورڈ میں جانے کے بعد ایس ڈی پی او شادرہ کے پاس تفتیش لگی ہے، جن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ تفتیش کو ہائی پروفائل طریقے سے کیا جائے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے، جو کہ مقتول کے ملزموں کو فوری سزا دلوائی جائے، اور جو ملزمان کو ریلیف دیا گیا ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ یہ مقدمہ نمبر 3149/23 جس میں جرم 302 کا لگایا گیا، اور شیر علی مدعی حقیقی بائی ہے، اس کی مدعیت میں اگلے روز ہی مقدمہ تو درج کر لیا گیا، لیکن مبینہ ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مدعی مقدمہ، جو کہ مقتول شمس علی کے چھوٹے بھائی شیر علی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، شیر علی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وقوع کیسے سرزد ہوا، آپ کے بھائی کو کس طریقے سے بدردی سے قتل کیا گیا، کن افراد نے قتل کیا، اور پولیس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سر جی، یہ 30 کی رات اور 31 کی صبح ہے، اور دو تو سر یہ رات کے ٹائم آئے ہیں، نامعلوم ہم نے پرچہ کروایا تھا، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا ہے کلو والے دن کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے والا بندہ تھا جس نے اسے ذبح کیا ہے سر۔ تو ہم نے یہ موقع پہ 15 پہ کال کی ہے، پولیس والے آئے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد، پھر اس کے بعد ہم نے پوسٹ مارٹم کروا کے دفنایا وغیرہ، اور اگلے دن سر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ نا ہمیں افسوس کرنے کے لیے آیا، ساتھ ہی بھاگا ہے۔ ہم نے پولیس والوں کو بتایا ہے، جو پولیس والوں نے بتایا کہ جی 9-10 دن بعد ہم نے پکڑا ہے، حالانکہ ہم نے دوسرے دن ہی بندہ پکڑوا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا سر۔ ہم پولیس تھانے جاتے رہے، رانا ارحم صاحب کے پاس دھکے کھاتے رہے کہ سر ہمارے بھائی کو یہ اکیلا بندہ گینٹھی کا مریض قتل نہیں کر سکتا، جو اس کے ساتھ اور بندے ہیں انہیں بھی گرفتار کرے۔ شیر علی بھائی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی گلی کے مشرقی جانب یا مغربی جانب یا شمال کی طرف کسی جگہ پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تھے جن کی فوٹیج آئیو نے حاصل کی یا نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ سر کیمرے کونے پہ بھی لگے ہوئے تھے، گلی کے باہر بھی لگے، جا کے ارحم صاحب کو بولا ہے انسپیکٹر صاحب کو جی فوٹیج لیں، وہ کہتے جی ہم نے فوٹیج نہیں لینی۔
हम डरते हैं, वो वकीलों का घर है, हम फुटेज नहीं उनसे ले सकते। मैंने कहा सर बाहर से ले जब बासर अफराद के खिलाफ किसी नवैयत की कार्रवाई करनी होती है तो सीसीटीवी कैमरेज भी चला दिए जाते हैं, इनकी फुटेज भी हासिल कर ली जाती है और हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्जमान को पकड़ा भी जाता है और सीसीटीवी कैमरेज जो उनकी फुटेज है उस पर वर्क भी किया जाता है। लेकिन अफसोस के जब गरीब के घर में कत्ल होता है, किसी नवैयत की वायलेशन सरजर्द होती है, गरीब के साथ जुल्म बर्बरियत की जब दास्तान रकम की जाती है तो अफसोस के पुलिस की जानिब से मुतहर्रिक तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती। मुतासरीन की अश्कबार आंखें इक़्तिदार के अवानों के लिए सवालिया निशान है। अच्छा शेर अली भाई, मुझे आप ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल नहीं की गई और उसके बाद टोटल कितने मुल्जमान थे जिनको गिरफ्तार करवाने के लिए आपने इस्तदा की और इनसे साजबाजी की गई? सर उसके बाद 4 बंदे और थे जिनमें इसकी राबिया, जिनके घर में 8 दिन रह के इसने रेकी की है, उसी के घर में हमने अगले दिन पकड़वाया है, कुलों वाले दिन। उसके बाद इसका बहनोई मोहम्मद अली जिसके घर में जाके इसने कपड़े चेंज किए हैं और इसका भाई नवीद जिसने इसके साथ मिलकर कत्ल किया है, और शहजाद अनवर जो इसकी बीवी का आशिकाना था, जो उसके साथ आके जिसने मिलके और जिनके पास इनके पैसे से शहजाद मजीद के शहजाद अनवर के पास उसने कहा कि तुम कत्ल करो और मैं पैसे लगाऊंगा। अब हमारे घर के बाहर आके वो हमें धमकियां लगाते हैं। मैंने जाके ये भी बताया था इंस्पेक्टर साहब को, वो कहते हैं कि आप चुप करके जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो बयान दो, अपना बयान सीधे करके दो, जो मैं कहता हूँ अपना बयान ये चेंज करो। तो मैंने कहा सर मेरा भाई कत्ल हुआ, मैं क्यों बयान चेंज करूँ, जो कातिल आप गिरफ्तार करो। भाई आप मुझे ये बताइएगा कि पुलिस बयान ततीमे में और दीगर बयानात में भी अपनी मर्जी करना चाहती है, पुलिस अपनी मर्जी के बयानात और मुहर्रकात को चेंज करना चाहती है? जी सर बेशक, इंस्पेक्टर साहब को जो हमने कहा कदीमा बयान में लिखवा के दिए कि सर ये नामजद है बंदे, इन्हें गिरफ्तार करें, ज़ेरे तफ्तीश करें, ये बंदे साथ हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारे कहने पे किसी को भी गिरफ्तार नहीं करूंगा। शेर अली भाई मुझे अब ये बताइएगा, ये जो आपका बयान ततीमा पुलिस ने अपनी मन मर्जी से नोट करवाया उसमें किन किन अफराद का नाम डाला गया? सर ये जो नाम मैंने नाम लिखवाए थे ना, वही नाम उनके पास है कदीमा बयान में, तो लिहाजा उन बंदों को उन्होंने गिरफ्तार किए ही नहीं, मिल मिला के सारे बंदे छोड़ दिए। आप कहते हैं कि शहजाद मजीद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर दी गई, इसको चालान कर दिया गया, शहजाद अनवर, मोहम्मद अली, नवीद और राबिया बीबी को छोड़ दिया गया, साजबाजी की गई, पुलिस ने भारी रिश्वत ली? जी सर, इनको मिल मिला के सबको छोड़ दिया सर। मैंने कहा कि सर 8-9 दिन से ये इनके घर में रह रहा है, रैकी कर रहा है, तो रैकी करने वाले का कोई जुर्म नहीं, कहता जी कोई जुर्म नहीं। फिर उसके बाद उन्हीं के घर से हमने अगले दिन पकड़वाया जिनके घर में रह के उसने कत्ल किया है। शेर अली भाई मुझे ये बताइएगा कि पुलिस मुल्जमान के कॉल, डेटे, राब्ते, लोकेशन, सीडीआर और दीगर साइंसी आलात की मदद से मुल्जमान को गिरफ्तार करती है। इस आपके केस में सीडीआर, डेटेस, आलात और दीगर सीडीआर, डेटेस, लोकेशनों की मदद से दीगर मुल्जमान की निशानदेही तो हो गई, लेकिन अफसोस के आपके मुकदमे में इन मुल्जमान को सजा नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं कि अब तब्दीली बोर्ड में आपको इंसाफ मिलेगा? सर मैंने तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के बाद अब ये पुलिस वालों के हाथ में सारा काम। अब मैंने ये तब्दीली बोर्ड में गया हूँ, मैंने उनके आगे भी जाके रोया हूँ कि सर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी तफ्तीश किसी ईमानदार अफसर को दी जाए जो मेरे भाई के असल कातिल हैं, जो जिन्होंने मिलके कत्ल किया है। क्योंकि ये गैठिए का मरीज है, ये कहता है मैंने अकेले ने कत्ल किया। सर गैठिए का मरीज इतने तेजदार आले के साथ शेर अली भाई ये तो वाजिया दीदा दनिस्ता वाजिया है कि एक बंदा इतनी बेदर्दी से एक बंदे को जिबा करते हैं, वो एक बंदे का काम नहीं, वो तो दीदा दनिस्ता। और वैसे भी जो सीसीटीवी फुटेज और दीगर चीजें और महरकात, सीडीआर, डेटे, लोकेशंस ही बता रही हैं कि ये बंदा अकेला मुलव्वस नहीं है, इस कत्ल में दीगर अफराद भी शामिल थे, लेकिन अफसोस के पुलिस इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि जब तब्दीली बोर्ड में तफ्तीश चेंज होने के बाद एसडीपीओ शादरा के पास चले गई तो उन्होंने आपको बुलाया, आपके बयानात कलम बंद किए और क्या पेशरफ्त हुई? अभी तक कितना टाइम हो चुका है? सर ये तफ्तीश चेंज हुई को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है और उनके पास गए डीएसपी साहब के पास जाके सारा उन्हें बताया और रोए उनके पास कि सर अल्लाह के बाद आपके हाथ में अब है कि हमारे साथ ईमानदारी के साथ ये इंसाफ किया जाए, जिस बंदों ने मिलके मेरे भाई को कत्ल किया है उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि राना अरहम साहब ने मिल मिला के छोड़ा था सर
آپ کے पास तफ्तीश आई है तो सर आपकी मेहरबानी। वो कहते हैं सर मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन सर अभी तक शेर हमें अली नहीं भाई, बुलाया। हम मुझे आप ये बताइएगा कि इसमें जो दीगर मुल्जमान हैं दूसरी तफ्तीश में, शहजाद अनवर, मोहम्मद अली, नवीद और राबिया वगैरह को शामिल तफ्तीश किया गया या इनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकी? सर अभी तक कुछ भी नहीं आई है। जब तक हम फोन करते हैं कहते जी हम आपको बुलाएंगे अभी आपकी तफ्तीश शुरू करेंगे, अभी बुलाएंगे। सर 1.5 माह हो चुका है, अगर उन्होंने ना हमें बुलाया है, उसके बाद एक दफा बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया, तो ना तफ्तीश शुरू की है। सर जी बिल्कुल अफसोस के 30-31 अगस्त की दरमियानी शब को आसमान ने क़यामत खेज मनाजर देखे, जिसमें 37 साला शम्स अली को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। 9 साला बच्चे का बाप शम्स अली मकतूल के कत्ल का मुकदमा था। थाना शमाली छोनी में मुकदमा का अंदराज 39/23 दर्ज हुआ, जो कि 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मदई मकतूल का हकीकी भाई शेर अली बना। इस मदई के मुकदमा ने भी इंकशाफात किए कि आईओ तफ्तीशी राना अरहम की जानिब से मुल्जमान से साजबाजी की जा रही है। राना अरहम इंस्पेक्टर ने इख्तियारात का दीदा निस्ता इस्तेमाल किया, जिसमें शहजाद मजीद, शहजाद अनवर, मोहम्मद अली, नवीद और राबिया बीबी वगैरह को किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मुल्जमान की तफ्तीश में मुल्जमान से साजबाजी करते हुए 4 मुल्जमान को छोड़कर एक मुल्जम मोहम्मद शहजाद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर दी गई, जिस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर के पास पेश होने के बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद साहबा ने तब्दीली बोर्ड में केस को लगाकर तफ्तीश को तब्दील करते हुए एसडीपीओ शादरा के हवाले कर दी। अफसोस के 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी ताहाल मुल्जमान शहजाद अनवर, मोहम्मद अली, नवीद और राबिया बीबी को गिरफ्तार नहीं किया गया और तफ्तीशी मुहरकात में किसी नवैयत का कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी तरफ देखें तो आईजी पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ इजला में सर्वे किए जा रहे हैं, दौरे किए जा रहे हैं और आईजी पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई है कि तफ्तीश में इंसाफ किया जाए। जिन अफसरान ने नाकस तफ्तीश की और जिन अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में आए। लेकिन अफसोस के यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है। मकतूल शम्स अली का शेर अली और इसकी फैमिली की बार आंखें इंसाफ की मतलाशी है और ये आला अदलिया और वजीर आला पंजाब के नोटिस की मुंतजिर है। नौजवान को कत्ल कर दिया गया, लेकिन अफसोस के बेदर्दी से कत्ल होने वाले शख्स शम्स अली के मुकदमे को दर्ज तो किया गया, तफ्तीश भी की गई, लेकिन इंसाफ काम नहीं किया गया।